Hello everyone, welcome to Madam H. Well, in today's video, we'll discuss about a free initiative that is known as Categorically, and this free initiative is being carried out by Madam H for all the CLAT aspirants of 2026 and beyond. This video is also helpful for all the students who want to gain insight and learn about the legal aspects and the current affairs scenario. Well, Categorically is a free initiative and it is a free crash course in which we'll be discussing with various legal aspects and we'll also deal with current affairs issues that are important for the exam. So, this is the first video that I am putting out, and in the recent times, whatever has happened, that will also be included in the current affairs. So, let us begin with the video. So, grab a cup of coffee, pick your pen, take a notebook, and let's delve into the preamble. So, the first topic is your preamble. Now, the first question arises, what is a preamble? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि प्रियम्बल क्या होता है. सो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव रेड सम बुक. सो वाइल रीडिंग द बुक यू मस्ट हैव सीन दैट in the front pages, in the beginning of the book, there is something known as preface. Now, this preface is nothing but it is kind of a short summary of the book that deals with the theme of the book and what you are going to find inside the book. So, similarly, preamble is nothing but that preface of our Indian Constitution. Preamble क्या है? Preamble एक kind of our summary है कि हमको आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एस्पिरेशंस हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गोल्स हैं. तो यानी हमें ये पता चलता है कि इफ़ समबडी रीड्स द प्रियम्बल विदाउट रीडिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज़ अ समरी और इट इज़ काइंड ऑफ अ स्मॉल जिस्ट दैट डील्स विद वेरियस थिंग्स दैट आर कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. अब हमारे आइडियल्स बताते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन डेमोक्रेसी का क्या आइडियल्स हैं. इंडियन डेमोक्रेसी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस. इंडियन डेमोक्रेसी बिलीव्स इन brotherhood. Indian democracy believes in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, the entire world is our family. So all of these are ideals, all of these are philosophies on which our constitution framers have made our constitution. Clear. Also there are certain goals and certain aspirations that the constitution aims to achieve. Like the constitution wants to deliver justice to the people, the constitution wants to establish a fair government, they want to establish a welfare state. So all of these are aspirations and goals that the constitution wants to achieve in the coming future. So preamble is nothing but preamble एक हमारा introduction है, एक gist है, एक summary है जो कि हमें बताती है कि आगे आने वाले समय में हमें constitution में क्या देखने को मिल सकता है. क्लियर. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज़ दिस प्रियम्बल ऑल अबाउट. ठीक है. अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले डील कर लेते हैं ना. हाउ वाज दिस प्रियम्बल मेड. अब ये प्रियम्बल पिक्चर में आया कैसे. तो प्रियम्बल पिक्चर में इस तरह से आया दैट ऑन 13th December 1946, on 13th December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru, he moved an objective resolution. He moved a resolution which is known as an objective resolution in the Constituent Assembly. Clear. So this date is important, that on 13th December 1946, Pandit Nehru moved an objective resolution in the Constituent Assembly, and this objective resolution, it was adopted on 22nd of January 1947.
तो हमारे पास ये दो डेट्स आ जाती हैं विच होल्ड इम्पोर्टेंस कि 1946 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एंड आफ्टर मूविंग दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947. क्लियर? नाउ व्हाट कम्स, अब हमने ये जो, एज वी ऑल नो दैट वी हैव borrowed or we have got inspired from the various constitutions of different countries. We have tried to pick up, just give me a second. Okay, so we have tried to pick up the best of the provisions from different countries. So now the question arises, ये preamble का जो concept है ये हमने कहाँ से लिया है? So the preamble has been borrowed or it has been inspired by the US Constitution. ठीक है, तो ये कई बार सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल पूछ लेते हैं आप लोगों से कि ये फीचर हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो हमें ये पता होना चाहिए दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. सी, this is completely a free initiative from my end so that we can deal, because not much of the time is left. So at Madam H, what we do is we directly hit the nail on the head. We don't brag around, we do not dump so many PDFs, so many videos and notes upon you. If you just stick to this video, at least this will be, I guess, 20-25 minutes long video. So if you stick to this video and if you take a pencil or I'll provide this PDF on my Telegram channel also. You can refer to the PDF later on. But if you just take a pencil and a notebook, and if you just jot down what I'm teaching here, if you listen to this entire video, it wouldn't be wrong to say कि आपको preamble फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I have dealt comprehensively and exhaustively everything that can be asked out of this topic preamble. Clear? तो यहाँ तक हमें clear हो गया कि preamble is nothing but it is just a summary of what is dealt in the constitution. This is our preamble. Clear? So and later on फिर हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था and it was adopted on 22 January 1947 and it later on became the preamble of our Indian Constitution. Clear? अब देखिए, अब हम यहाँ से पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को डील करते चलते हैं. नो द फर्स्ट थिंग इज़, हमें पता क्या चलता है. अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर वो कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो हमें इससे वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या पता चलता है? हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से पता चलता है द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि नोबडी हैज़ इम्पोज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन अस. किसी ने हम पे ये थोपा नहीं है, किसी ने हमारे लिए ये बनाया नहीं है. रादर वी द पीपल ऑफ द कंट्री हैव गिवन आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद के लिए खुद से बनाया है. अब सवाल ये आता है कि क्या हम खुद गए थे बनाने? नो, थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो दे हैव ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी द पीपल देमसेल्व्स हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स. किसी और ने हमारे ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं किया है. क्लियर? अच्छा, अब हमें सेकेंड चीज़ क्या पता चलती है इससे? सेकेंड चीज़ हमें पता चलती है द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का? द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज SSSDR. ये याद रखने का तरीका है. आप इसको इसी तरह से इसी सीक्वेंस में मेमोराइज करेंगे, बिकॉज ऑफन ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है. और नॉट द क्रोनोलॉजी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, द सीक्वेंस आई शुड से. ठीक है, ये आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि आप इसको इसी सीक्वेंस में अरेंज करें. नाउ व्हाट इज़ दिस SSS एंड DR? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं. दिस फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सॉवरेन. ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट डील करेंगे. अभी पहले बस सुन लीजिए. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. This means
Our constitution is, the nature of our constitution is sovereign, it is socialist, it is secular, it is democratic, and it is republic. Now one by one we will deal with this. Okay, just you wait for a moment. Okay, now one by one we'll deal with each word. Now the first word here is sovereign. Now what does sovereign means? Sovereign means we are not dependent on anyone. We are not dependent. We are not dependent on anyone. Neither we are dominated by anyone. Yani India is free to make its own decisions. Make its own डिसीजंस. तो हमारे ऊपर कोई बाहरी इंसान डोमिनेट नहीं करेगा. इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजंस. हम अपने आंतरिक और बाहरी दोनों फैसले खुद, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ डिसीजंस, बोथ काइंड ऑफ डिसीजंस, इंडिया इज़ फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस. कोई बाहरी ताकत या कोई थर्ड पार्टी, यानी नो थर्ड पार्टी अलाउड, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे डिसीजंस नहीं लेगी. आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल. आई एम नॉट डेल्विंग इनटू द पॉलिटिकल aspect of the example that I am giving. I am just giving an example for your better understanding. Clear? अब देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, everybody knows. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ. Okay. Now what happened is, before the Indian government could announce, or before the Indian government announced about the ceasefire, the American president tweeted about the ceasefire. Clear? Now we are not aware of what happened, but there was a debate and buzz in the country stating that why is a third country announcing about our decisions, announcing about our ceasefire. India is a sovereign country. India is free to make its own decisions. Then why a third party is being included, or why a third party is interfering in our matter? We are not aware of the political aspect and we do not have to go into it. I am just giving you an example that what is sovereignty. Sovereignty means that we are free to make our own decisions and nobody has the right to interfere or dominate us. Clear? This is sovereignty. Now we come to the word socialist. अब socialist का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, तो socialist का मीनिंग होता है equal distribution of wealth. Equal distribution of wealth. यानी कि the resources and the opportunities will be distributed among everyone equally. यानी हम एक चीज़ और कह सकते हैं, there must not be a concentration of wealth. Concentration of wealth नहीं होना चाहिए, equal distribution होना चाहिए. कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं, कंट्री के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. अब देखिए, आप एक पहले वर्ड सोशलिस्ट हम लेते हैं, इसको हम डील करेंगे डेप्थ में. वाई? बिकॉज देर इज़ अ करेंट अफेयर लिंकेजेस. एंड सी, विद मैडम एच देर इज़ this unique feature of our course or unique feature of our way of teaching is we do not teach current affairs and statics separately, because उससे टाइम भी एक्सटेंड होता है, बच्चों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है और उससे लिंकेजेस नहीं बन पाती हैं. सो एट मैडम एच व्हाट वी डू, वी ट्राई टू लिंक योर करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक टॉपिक देयर एंड देन, ताकि जैसे ही आप स्टैटिक टॉपिक पढ़ें आप उसका करंट अफेयर्स तुरंत डील कर लें. तो आपको एक कनेक्टिविटी बन जाएगी दैट ओके, दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग अलोंग इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड. क्लियर? अब देखो, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, दिस इज, इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री इन स्ट्रिक्ट सेंस. हम लोग स्ट्रिक्ट सेंस में सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं. तो फिर हम क्या फॉलो करते हैं? Every now and then the Supreme Court has said that India follows a kind of a socialism that is democratic socialism. हम लोग क्या फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं. अब इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मीनिंग होता है, ये हम फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से बनाया, बिकॉज वी फॉलो दिस. ठीक है. अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है दैट ठीक है, पब्लिक को बराबर हक तो मिलेगा, बट दिस डज नॉट मीन कि हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को
फ्लरिश नहीं होने देंगे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब है हमारी कंट्री में पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में फ्लरिश करेगा, फ्लरिश एंड एग्जिस्ट टुगेदर, ये दोनों साथ में फ्लरिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ जो भी डाउन ट्रॉडन हैं या जो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, गवर्नमेंट उनको क्या करती है, गवर्नमेंट उनको फ्री राशनिंग देती है। ठीक है, उनको राइस वीट ये सब फ्री में देते हैं। बट क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया में कोई बिजनेसमैन नहीं है? ऐसा तो नहीं है। वी हैव सीन सो मेनी like multinational companies and so many renowned big businesses. We have Reliance, we have Tata, ठीक है, we have Godrej, so many businesses are there. So Indian socialism is a democratic socialism in which we follow a rule that the private and public both will flourish and exist together. So now this becomes important, that India follows a socialism which is democratic socialism. Clear हो गया? I hope यहाँ पे clear हो गया होगा। नहीं हुआ है then you can drop your comments in the comment section and I'll try to answer the questions. Okay? Now next comes is secular. अब देखो secular का क्या मतलब होता है। Secular का मतलब होता है religious neutrality. Religious neutrality. अब religious neutrality किसकी? क्या सिटीजन्स की? ऐसा तो नहीं है। सिटीजन्स को बोला गया कि आप जो भी रिलीजन चाहें, जो भी फेथ चाहें, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको प्रीच कर सकते हैं, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो फिर ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी किसकी? रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। अभी देखो स्टेट क्या है, अभी सरकार समझ लो, बट स्टेट सिर्फ सरकार नहीं है। जब मैं आर्टिकल 12 पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें स्टेट की डेफिनेशन को बहुत डेप्थ में डील करूंगी कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है जो कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, एंड हाउ दैट हैज़ इवॉल्व्ड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड हाउ इट स्टैंड्स इन टुडेज टाइम। ठीक है, अभी बट समझ लो सरकार या उनकी एजेंसीज। ठीक है, तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, यानी हम ये कह सकते हैं द स्टेट विल हैव नो रिलीजन, will have no religion of its own. ये है सेक्युलर का मीनिंग। ठीक है, अब देखो अपना रिलीजन नहीं होगा मतलब स्टेट फ्री होगा, अनबायस्ड होगा। सो द पीपल आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। पीपल आर फ्री टू फॉलो रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, फॉलो एज पर चॉइस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, फॉलो एज पर चॉइस। बट यहाँ पर जो कैच है, मतलब जो क्रक्स है, जो की एलिमेंट है, दैट इज़ द रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट कोई बायस्ड नहीं होगा। लेकिन इंडिया एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मीनिंग है कि ठीक है, इंडिया का जो स्टेट है वो अनबायस्ड रहेगा, वो फ्री रहेगा, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। हाउएवर जो स्टेट है वो चाहे तो हेल्प कर सकता है फैसिलिटेट करने में किसी पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर को। वो सिर्फ हेल्प कर सकता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बट वो एड कर सकता है, कुछ हेल्प कर सकता है। सो दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म। स्टेट इज एंटायरली अवे, स्टेट इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम द रिलीजियस अफेयर्स, बट इंडिया फॉलोज अ सेक्युलरिज्म दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब देखो ये दो वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? अब देखिए आपका यहाँ पर आ जाता है तुरंत से करंट अफेयर लिंकेज। दिस इज योर करंट अफेयर, सॉरी, just a second, this is your current affair linkage. Clear? अब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? देखो ये मैंने आर्टिकल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये मेरा अपना नहीं है। द कर्टसी गोज टू इंडियन एक्सप्रेस। हाँ भाई, कॉपीराइट पे कुछ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ। दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 4 जुलाई। ये मैंने उनके वेबसाइट से लिया है। 4 जुलाई का ये आर्टिकल है। अब देखो इंडिया में क्या हो गया है, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड पे फिर से डिबेट चालू हो गई है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रॉम द प्रीएम्बल हैज़ कम अप ट्वाइस इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स में इन दो वर्ड्स पे डिबेट चालू हो गई। अब क्यों डिबेट चालू हो गई वो समझते हैं। देखो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये दोनों वर्ड्स सोशलिस्ट
एंड सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स उसमें प्रेजेंट नहीं थे। ठीक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर ये दोनों वर्ड्स आए कैसे? These both the words were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। अब इनसे इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड हुए। कौन कौन से? एक तो सोशलिस्ट ऐड हुआ, एक सेक्युलर ऐड हुआ और एक इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ। तो अगर सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट और ऑप्शन देता है सोशलिस्ट, सेक्युलर, बोथ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तो आपको याद रखना है कि 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही चीज़, एक पॉइंट मैं यहाँ पर और ऐड कर देती हूँ, इसको यहीं पर पढ़ करके याद कर लो, दैट द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको यहीं पर याद कर लो। अब देखो हुआ क्या, अब ये दोनों वर्ड्स जो है हमारे, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कई बार पेटिशंस गए, देयर वर मेनी पेटिशंस दैट आर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग कि वी शुड रिमूव दीज वर्ड्स, रिमूव दीज 2 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इन दोनों वर्ड्स को रिमूव कर दो। और अब फिर से देखो डिबेट स्टार्ट हो गई है दैट दीज 2 वर्ड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? इनका बोलने के 2 रीज़न है। पहला कि दीज 2 वर्ड्स वर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थे। दूसरा इनका कहना है कि ये वर्ड्स इमरजेंसी के टाइम पे ऐड किए गए थे। हम सबको पता है 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी, एडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इनके 2 कंटेंशंस हैं कि भाई एक तो ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं है, दूसरा ये इमरजेंसी के अराउंड ऐड किया गया है, तो आप इन दोनों वर्ड्स को रिमूव कर दीजिए। तो अब हुआ क्या? अभी तो चलो ये डिबेट फिर से आ गई है, तो अभी तो ये मैटर जाएगा, क्या होगा पता नहीं। पहले के डिसीजंस क्या हुए हैं? सो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या कहते हैं? प्रीवियस स्टांस ऑफ द कोर्ट, प्रीवियस स्टांस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, प्रीवियस स्टांस ऑफ द कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये पेटिशंस को डिसमिस कर दिया और बोला, डिसमिस्ड द पेटिशंस, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट दीज टू वर्ड्स even if removed you cannot change the character or the nature of the constitution। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि अगर मान लीजिए हम आपके कहने से ये सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड हटा भी देंगे तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर चेंज कर देंगे? सिर्फ नाम लिखने से थोड़ी नेचर है। हमको कैसे पता चलता है सोशलिस्ट है? DPSP से पता चलता है। What are DPSP? DPSPs are डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक रिकमेंडेशंस हैं, एक सजेशंस हैं स्टेट को कि आप इस तरह करिए। और जब हम DPSP पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ कहता है दैट वी शुड प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। और उसमें एक चीज़ और कहता है, उसमें कहता है दैट वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ वेलफेयर स्टेट। तो कोर्ट ने बोला सिर्फ नाम लिख देने से थोड़ी है, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब दूसरा वर्ड जो है सेक्युलर, अब इस पे आपको एक लीडिंग केस लॉ याद रखना है, ठीक है। मैं उसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट, आई विल गो विथ पिंक, ओके। अब आपको इसमें एक केस याद रखना है, दैट इज़ अ लीडिंग केस, दैट इज SR बोमय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो भैया, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दैट सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुतों के मन में सवाल आएगा, बहुतों ने पढ़ भी रखा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं केशवानंदा भारती केस और ये सब बहुत डेप्थ में डील करूंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो, बेसिक वर्ड समझ रहे ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, बेसिक स्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि हमारा क्या है, एक मूल ढांचा है, एक मूल ढांचा है
जिसको कभी भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट चाहे तो और बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकती है, जो चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, बट ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या जिसको चेंज करने से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिटोरिएट होगा, वायलेट होगा, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड देखिए, आर्टिकल्स हैं जो आपके 25 to 28, ये आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ सेक्युलर इन नेचर। अब ये आर्टिकल्स आपको कहते हैं कि आप अपने मन का रिलीजन प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रिलीजियस ऑटोनॉमी दी है, इंडिविजुअल्स को भी दी है और रिलीजियस डिनोमिनेशंस को भी दी गई है, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है दैट इट इटसेल्फ इज़ अ सेक्युलर इन नेचर एंड इट इटसेल्फ इज़ सोशलिस्ट इन नेचर। तो अभी ये आपका हो गया करंट अफेयर लिंकेज। अब देखिए, मैंने पढ़ाते समय आपको सिर्फ स्टैटिक चीज़ें ही नहीं डील करी हैं, आई हैव डेल्ट विद द, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमने इसको यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से भी लिंक करके तुरंत पढ़ लिया कि इसको हमें क्यों इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नाउ योर नेक्स्ट 2 वर्ड्स आर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, हम बचपन से सिविक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब है दैट पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इससे हम वही 3 चीज़ें पढ़ते हैं, क्या, ऑफ, फॉर एंड बाय, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेटिक कैसे समझ सकते हैं, आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 326। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या बहुत से लोग सफरेज भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हमें इससे एक चीज़ और पता चलती है कि हमें आर्टिकल 326 से ही क्या मिलता है, राइट टू वोट। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट हो गया, ये आपको अपने जहन में रखना है, ये आपको अब याद रखना है कि हमें राइट टू वोट कहाँ से मिलता है, हमें राइट टू वोट मिलता है आर्टिकल 326 से। क्लियर। अब देखिए लास्ट वर्ड क्या बचा आपका, लास्ट वर्ड बचा आपका रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का ये मतलब है दैट द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड, मतलब मोनार्की नहीं होगी, ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड इन नेचर। क्लियर। सो आई होप यहाँ पे आपको नेचर समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि वी द पीपल, तो वी द पीपल से हमको क्या पता चलता है, वी द पीपल से हमको सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। फिर हमने नेचर पढ़ा, नेचर में हमने 5 वर्ड्स पढ़े, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इसका हमने करंट अफेयर लिंकेज किया। उसके बाद हमने पढ़े 2 वर्ड्स डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब देखो अगला क्या आता है, अगला आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा क्या एम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे देखिए 4 हैं, एक है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम इन वर्ड्स को भी एक एक करके डील कर लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्रियम्बल में कहाँ और कैसे मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखो, लेट मी जूम दिस फॉर यू। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स हमने पढ़ लिए। एंड टू सिक्योर, मतलब ऑब्जेक्टिव है हमारा, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एक एक करके ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, इनका क्या मतलब है। अब जस्टिस देखो हमको 3 तरीके की देनी है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, वहाँ पे थोड़ा फिर खिचड़ी बन जाएगा। जस्टिस क्या है, सोशल भी देनी है, इकोनॉमिक देनी है और पॉलिटिकल देनी। सोशल जस्टिस का मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल मतलब सबको अपना राइट है, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का राइट है। तो ये जस्टिस है, सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं 3 वर्ड्स यहाँ ये तीनों साथ में डील करूँगी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक, बहुत बढ़िया।
अब पहले इनको समझाने से पहले एक चीज़ याद रख लो, ये जो 3 वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज हैव बीन टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम, नॉट बाय, सॉरी, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, ऑफन दीज वर्ड्स, दीज 3 आर टर्म्ड एज होली ट्रिनिटी, इनको हम होली ट्रिनिटी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। आपका क्या थॉट्स हैं, आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम। मे बी आप नास्तिक हैं, यू आर एन एथीस्ट, मे बी आप एग्नोस्टिक हैं, यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, आप नहीं बिलीव करते हैं कि वो है भी या नहीं, आपको नहीं पता। यू आर फ्री, आपको लिबर्टी है वो फॉलो करने की। इक्वालिटी हमें पता है, ठीक है। अभी जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो हम उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दैट पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अभी बेसिक बस इतना समझ लो। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब हमारा हो गया अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, कि भैया सब लोग भाईचारे से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमने क्या पढ़ा? ये ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? लोगों को न्याय देना, सबको लिबर्टी, सबकी लिबर्टी इंश्योर करना, सबको इक्वली ट्रीट करना और एक भाईचारे की भावना बना करके रखना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्लियर? अब देखो, अब हम फिर से प्रियम्बल रेफर करेंगे। प्रियम्बल में अब लास्ट में क्या कहता है? In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. मैंने पढ़ाया था ना कि हम लोगों ने, we the people ने ही खुद को ये Constitution दिया है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ से 2 डेट्स आपको याद रखनी है और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। इस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। एक बार ये CUET में क्वेश्चन आ चुका है एंड आई हैड टॉट माई स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा डेट है, बचपन से सब लोग जाते आ रहे हैं, 26 जनवरी 1950। अब इस दिन क्या होता है? ये हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। इस दिन से संविधान भारत में लागू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। जस्ट अ मिनट। और इस दिन को बचपन से ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आवर रिपब्लिक डे। तो हमने ये दोनों चीज़ों को भी समझ लिया क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का बेसिक्स कंप्लीट होता है। अब देखो, 3 सवाल जनरली आते हैं, पूछे जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल के हैं, क्लैट में तो नहीं पूछेंगे, मे बी अदर एग्जाम्स के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को अगर रेफ़र करें तो ये उनके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं 3 सवाल आपको डील करती हूँ। पहला, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये जो प्रियम्बल है ये भारत के संविधान का हिस्सा है या सिर्फ एक ओपनिंग प्रीफेस है तो हम उसको हिस्सा नहीं मानेंगे? क्लियर? अब इसको पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखो, एक केस हुआ बेरूबारी यूनियन का, ठीक है, बेरूबारी केस मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में। उसमें बोला गया कि भैया प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है। फिर उसके बाद एक केस होता है आपका केशवानंद भारती केस। इट इज़ अ वेरी लीडिंग एंड इट्स अ लैंडमार्क केस, ठीक है। इसको मैं डेप्थ में बेसिक स्ट्रक्चर में बताऊंगी। केशवानंद भारती इस केस में शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें बोला गया दैट यस, एक मिनट, इसमें बोला गया, ओह व्हाई इज इट नॉट विजिबल,
चलो पिंक से कर लेते हैं, या लेट्स गो फॉर लाइट ब्लू। येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक केस आता है हमारा LIC का। LIC में तो एक कदम आगे बढ़ के बोल दिया उसी बात को, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अहम हिस्सा है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल अमेंडेबल? क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं? क्या हम उसको अमेंड कर सकते हैं? तो कोर्ट ने बोला यस, इट कैन बी अमेंडेड, हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, बट अब कैच है यहाँ पे, बट द बेसिक स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी वायलेटेड। जो हमने ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ा था ना, वही है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी वायलेटेड। बिना बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे आपको जो कुछ बदलना है आप बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर ऐसा आप चेंजेस करते हैं जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है तो वो फिर नहीं माना जाएगा, दैट बिकम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक? और थर्ड क्वेश्चन आता है, इज प्रियम्बल एनफोर्सिएबल? क्या हम प्रियम्बल के वायलेशन को लेकर कोर्ट जा सकते हैं किसी इशू को? तो देखो इसको ऐसे समझो, प्रियम्बल एनफोर्सिएबल तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली एनफोर्सिएबल नहीं है। बोले कुछ समझ में नहीं आया, हमें भी नहीं आया। देखो जैसे सपोज ये हमारा प्रियम्बल है, ठीक, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब प्रियम्बल का जो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, मान लो तुम्हें इसको लेकर के तकलीफ़ है, बट तुम इसको अकेले इंडिपेंडेंटली अलोन कोर्ट नहीं ले जा सकते हो, अलोन नहीं ले जा सकते हो। पर मान लो कोई तुम्हारा आर्टिकल है, सपोज मैं एग्जाम्पल 21 का लेती हूँ, दिस आर्टिकल 21 हैज़ लिंकेज विद दिस पॉइंट ऑफ प्रियम्बल, तो आप इनको मिला करके यू कैन टेक इट टू द कोर्ट। येस, तो इसका अगर मैं साफ साफ आंसर लिखूँ, येस इट इज़ एनफोर्सिएबल बट नॉट independently of other parts। क्लियर? डन? तो ये आपका हो जाता है प्रियम्बल कंप्लीट। अब एक बार हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला रिकॉल मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? सो दिस इज़ अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम मैडम H's साइड फॉर यू पीपल। इट इज़ कैटेगोरिकली, द नेम इज़ कैटेगोरिकली, ठीक है? दूसरी बात, ये एक फ्री इनिशिएटिव है, इसमें हम वही टॉपिक्स डील करेंगे जो इतने कम टाइम में अगर हाई स्कोरर बन सकते हैं, ठीक है? वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वही चीज़ पढ़ाएं विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। हम विल ऑल्सो डील विद योर करंट अफेयर्स, विल ऑल्सो डील विद योर लीगल स्टडीज़ पार्ट। क्लियर? चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा था आज का प्रियम्बल। प्रियम्बल, what is preamble? Preamble is nothing but it is kind of a summary, it is kind of a gist that tells us about our constitutional provisions। ठीक है? ये 1946 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। अब प्रियम्बल जो है ये हमने कहाँ से डिराइव किया है? डिराइव्ड फ्रॉम, वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? फिर हमें पता चलता है वी द पीपल जो लैंग्वेज है, इससे पता चलता है सोर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन कि ये हमें किसी ने दिया नहीं है, थोपा नहीं है, ये हमने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट किया है। वो कहते हैं ना, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। सो दिस इज गिवन टू आवर सेल्व्स बाय आवर सेल्व्स। ठीक है? फिर नेचर पता चलता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। प्लीज़ 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 इसका सीक्वेंस याद कर लेना। फिर सॉवरेन पता चलता है वी आर नॉट डोमिनेटेड बाय एनी थर्ड पार्टी, हम फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। सोशलिस्ट मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हाउएवर वी आर नॉट सोशलिस्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, वी आर अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। फिर हमने इसकी करंट अफेयर लिंकेज करी कि आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ इस समय बज़ चल रहा है, डिबेट चल रहा है कंट्री में। फिर उसको पूरा हमने बताया कि ये ओरिजिनली एडेड नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया। फिर हमने लीडिंग केस किया SR बोमई का। फिर डेमोक्रेटिक पढ़ा, रिपब्लिक पढ़ा।
फिर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिराइव किया, इसको होली ट्रिनिटी भी कहते हैं, 2 डेट्स इंपॉर्टेंट थी ये पढ़ी, और ये तीनों क्वेश्चंस करे कि क्या प्रियम्बल पार्ट है, क्या अमेंड किया जा सकता है, क्या इन्फोर्सिएबल है. एंड दिस with this we come to the end of your topic of preamble. ठीक है, so I am not bragging, but I have tried my best to comprehensively and exhaustively deal with the topic of preamble कि अगर बच्चा ये पढ़ता है तो उसके बाद उसे कहीं और से preamble पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है, तो I hope you like this video, and you can, if you like this video and if you find it useful, then you can give your love in the form of a small like, maybe a small comment, and please subscribe to the channel for more useful insights. So stay tuned with Madam H, and Madam H is a place where we slay your exams. So Madam H, the study buddy you deserve. So thank you so much, and I hope, please tell me how did you like the video. Thank you so much.